some very key details. Who is Lalit Jha, the man who's now being seen as a mastermind of this entire security breach episode? Let's break down the crucial details as part of the remand copy that we've accessed here on CNN News 18. Now, this is the first point that the remand copy reveals, that the probe reveals objective was to terrify the MPs. And as we've been pointing out over the last couple of days, that there was meticulous planning that went into the security breach that unfolded in Parliament last week. What we're also now picking up is that the plotters in fact wanted to create unrest in the country. If you remember the sequence of events, you had two people inside and two people outside. The people outside were sloganeering, the ones inside jumped off and they had canisters in their shoes. The remand copy further says that Lalit Jha, this man who's now being seen as the mastermind, was in fact contact with the accused for a long period of time. So as we pointed out, all of this was not done spontaneously. This all saw months of planning behind it. What we are also now understanding as part of the remand copy is that the plotters in fact met several times to in fact describe, understand the sequence of events and the conspiracy that they wanted to unfold as far as this entire attack is concerned. What the remand copy also reveals, the conspiracy was made to create anarchy as far as the floor of the House is concerned. The remand copy further reveals the motive was to get all their demands met. You would remember that when these people in fact were detained, they continued with their sloganeering even as the police was taking them away. This man, Lalit, in fact took the accused person's phones to destroy. So that is exactly why he's today now being seen as the mastermind, because it was him, the police believe, who got these four others together and planned this entire thing, right from figuring out how they can get a visitor pass, how they can cut through the security, what are the areas. So they knew a lot on the ground. Maybe enough recce was also done in the past. So all of this now part of the investigation, and it's a possibility that more people in days to come could in fact be detained and arrested as well. Some other reactions also now coming in. आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम क्या होते हैं। बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले हैं। सारे मीडिया वालों ने सारे कुछ आम लोगों के सामने रखा। तो इंटेलिजेंस किसके पास है? खुफिया किसके पास है? खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं? खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या? ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृह मंत्री आए, बयान दें, कुछ सवाल उठेगा, उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। एचएम क्यों आएंगे? एचएम क्यों आएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष का यह विषय है, लोकसभा सचिवालय का विषय है। एचएम क्यों आएंगे? एचएम को यदि आप लाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कल को सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी सब ये लोकसभा के प्रेमाइसेस पे आने लगेगी। आप कभी कहिए डिफेंस मिनिस्टर जवाब देंगे, कभी होम मिनिस्टर जवाब देंगे। यहाँ जो है पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट सांसदों का है, संसद का है। और मैंने एक और जो ट्वीट किया है 74 का, उसमें और इंपॉर्टेंट मैं बताऊं
कि जो रिजोल्यूशन है एक मामूली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के उसने मूव किया है। यहां तो रिजोल्यूशन जो है सरकार को भी मूव नहीं करना है, कभी ऐसा नहीं हुआ। यह पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। आप सरकार को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो फ्रिस्किंग होने लगेगी, सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे आर्मी यहां आ जाएगी, सरकार को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो हमारा आपका जो है जीना जो है लोकसभा प्रेमाइसेस में या पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस यही करती रही है 50 साल तक, उसको समझ में आना चाहिए। You've been seen suspending. What did you do yesterday? I just was there in the well and asking for the Prime Minister or the Home Minister to come and give a statement in Parliament, and I just had a placard in hand, and I didn't know if that was really disrupting and behaving unruly. 3 राज्यों में अपनी हार के बाद विपक्ष जहां एक और उस पे आत्मचिंतन ना करके रुकावट बन रहा है सदन को चलाने के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हार के कारण भी जानिए क्योंकि आप जनता के साथ जुड़े नहीं रहे। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की। उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। 14 MPs got suspended yesterday from the India Alliance. Very senior MPs including Kanimozhi are in the list. It's quite unfortunate that an act of democracy when there is a security lapse and security breach and big failure, the government wanted to hide the issue and divert the issue. That is why they have suspended the MPs and to make sure that no more such discussions happen in the parliament. What exactly the Delhi police has given in the court? It is a terror attack. Delhi police is under Home Minister of India, isn't it? Delhi police is giving an affidavit in the court that it is a terror attack. We didn't politicize. We didn't make it as a terror attack. We told it is a serious security lapse from the government side. So what it says, you see, what can you prove by a photograph? And that is to a single photograph. It seems that they want to suppress, cover up their failures. And I do not know the miscreant, neither by name nor face. And this is something childish. आज तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं? वो बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृह मंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जिनकी दायित्व बनता है, वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। इसमें कोई नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। इस पर जांच हो और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कम से कम इस पर एक छोटी सी चर्चा हो, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये मांग स्वीकार करनी चाहिए।